Namo.
Nitai Gunamani Amai, Nitai Gunamani, Nitai Gunamani Amai, Nitai Gunamani, Aniya Preme
निताय गौर जीवन धन निताय गौर जाति निताय व्याने गौर आर नाही गति संसार सुखे मुखे तुल देव छाए न करे मगिया खाओ गाया ये देशे ताई नाई से देशे नया
Nitai Gaura Nama Anantera Nama Jayana Nilaya Nitai Gaura Nama Taya
संकीर्तन के रोया दुआ बसाई दुआ बसाई ब्रजेन्द्रनन्दना भजे जना सफल जीवन Thank you.
दिल्ली में हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare I want to hear it. Haribo, Haribo. Om Madhyana Timindasya Gyanandaya Salakaya Sashu Vitamina Tasmai Shri Namaha.
Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Sriman Bhaktivedanta Narayani Namini Shri Krishna Lila Kantini Sudrasha Madhurya Gunaschayotam Varam Varinyam Purusho Mahatam Narayanam Tram Silasya Namami Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaur Bhattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So today is the auspicious disappearance day, actually, for the Vaishnav, pure devotees of the Lord. Appearance and disappearance day are the same. So today we honor a very great devotee of the Lord who came. Actually, he is like the immediate after Mahaprabhu's disciples, followers. And he took shelter of Narahari Sakara Thakur. And he was, actually an associate. His spiritual master was an associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So when Lochan Das Prabhu, he was born around 1520, so that means a little bit, maybe 30 years, is it after Lord Chaitanya Mahaprabhu or during Lord Chaitanya Mahaprabhu's time? His birth? Yes. His birth was there, but he wasn't associating, yes. So he did not associate, but he became a disciple of, his spiritual master, as I've said, Sri Narahari Sakara Thakur, and he was very powerful. So in essence, he took most of the writings of Murari Gupta and Srila, not Vrindavan, Murari Gupta, Sri Kavi Karanpur Goswami. One of them he took, I'm forgetting the last one. He took two men and then he compiled what we know as the Chaitanya Mangala. So he compiled the Chaitanya Mangala in such a way that it could be more appealing to the devotees of that time. And he is actually from East Bengal, present-day Bangladesh. So he compiled. No. He's not from West Bengal. He's not from Bangladesh. Lochan Das Thakur took birth near Katoya. This Mahaprabhu's sannyas place. That's why he took the. Very close to that is Kogram. He took birth there. And Then Hari Sarkar also used to live very close by. Yeah, that I know. I thought he was born there and he moved. No. Okay. Sorry. I got it wrong. So he actually compiled, the Charya Mangala, and apart from that, all the songs, many of the songs we are singing now, he compiled those songs in the simple, meter form,
so that the village people can also participate. So instead of the Sanskrit, he compiled everything in the local language so that everybody could participate in it. So Lokchan Das Thakur, today we are honoring him, and you can see that most of his songs, Lokchan Das Thakur, and later, not later, but also somebody like Narottam Das Thakur, they were very instrumental in getting the bhajans that we have today in the form that we have it. So I'm very grateful to great souls like Sri Lokchan Das Thakur, who by his, mood have brought us this great bhajans and teachings. The bhajans that we sing every morning have some special essence to it. The bhajans give us, relationship to the mantras we chant. So as we are chanting the bhajans, all the mood of the acharyas that is coming from their heart is within these bhajans. Means as we chant the bhajans and meditate on them, we imbibe some of their moods into our heart. So it is very good that every morning we all participate in chanting these bhajans, and especially bhajans like the one we are chanting today, mostly of Lokchan Das Thakur, and bhajans of Srila Narottam Das Thakur, bhajans of Srila Bhaktivinoda Thakur. These bhajans are very, very important. And as we chant them, we meditate on them, the mood of the acharyas will come into our heart. Shri Go Premanande. Oh. It's okay. Andhasya ज्ञानांजन शल यहाँ से ऑन हो जाता है बार बार, वहां से होता नहीं क्यों? सुन नहीं, क्यों नहीं? वही तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों ने इसमें अभी भी कुछ न कुछ और असुविधा है।
नितिन भैया देखो क्या करना है। क्या होता है उससे? अभी हम लोगों ने हमारे महाराज जी से अंत शांत महाराज जी से श्री लोचन दास ठाकुर जी की 2-4 बातें उन्होंने संक्षेप में बतलाई, उसी को ही हम लोगों ने श्रवण। लोचन दास ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु के एक तो श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर हुए जो उनके साथ ही साथ में प्रकटित हुए थे, और उनके संन्यास के समय में हो, संकीर्तन के समय में हो, उनके साथ में सब स्थानों पर एक तो उनको कहते हैं ये महाप्रभु के परिकर हैं। जैसे श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री शची माता, श्री विश्वरूप प्रभु, श्री विष्णु प्रिया देवी, श्री लक्ष्मी प्रिया देवी, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, श्री गदाधर पंडित, फिर श्री राघव चैतन्य प्रभु, श्री स्वरूप दामोदर जी, श्री राय रामानंद, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी इत्यादि। ये बहुत सारे भक्त लोग कोई श्री चैतन्य महाप्रभु से थोड़ा समय पहले प्रकट हुए, कोई उनके लगभग आसपास में प्रकट हुए, कोई थोड़ा सा बाद में भी प्रकट हुए, किंतु उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की जो इस जगत में लीला उसमें साक्षात रूप में भाग लिया। अलग अलग प्रकार से अपने नेत्रों से उनकी लीलाओं को देखा, अपने कानों से उनकी बातों को सुना, उनके साथ साथ में भ्रमण किया, किसी ने प्रचार किया, किसी ने उनके आदेश अनुसार स्थान स्थान पर जाके भक्ति का प्रचार किया। ये सारे परिकर कहलाते हैं उनके, और इनको कहते हैं कि वो उनके साथ में ही रहने वाले परिकर। किंतु फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के जो महाप्रभु 48 वर्ष तक इस जगत में रहे, फिर उन्होंने अपने आप को इस धराधाम से वो अदृश्य हो गए, अपने धाम में प्रवेश कर गए। अभी फिर आगे उनके जो परिकर गण थे, उन्होंने आगे क्या किया? श्री चैतन्य महाप्रभु की ही जो शिक्षा, उनका आचरण, आदर्श, वो सब स्वयं पालन भी करते रहे, आगे उसका प्रचार भी करते। उसी में ही श्री लोचन दास ठाकुर जी के गुरु जी भी आते हैं, जिनका नाम है श्री नरहरि सरकार। श्री नरहरि सरकार चैतन्य महाप्रभु के साथ में नवद्वीप धाम में रहते थे। इसीलिए गौर आरती में भी हम लोग गाते हैं, नरहरि आदि करी चामर ढोलाए। संध्या में महाप्रभु की आरती होती है नित्य प्रति, उसमें गाते हैं कि नरहरि सरकार जो है वो अपने हाथ में, जब महाप्रभु की आरती होती है, नरहरि सरकार अपने हाथ में चामर लेकर उनकी सेवा करते हैं। नरहरि सरकार जो हुए, ये हुए चैतन्य महाप्रभु के साक्षात संग में रहने वाले उनके भक्त, साक्षात सेवा करते थे। आगे लोचन दास ठाकुर फर्स्ट जनरेशन,
महाप्रभु के शिष्य समान हुए। ऐसे तो महाप्रभु ने किसी को मंत्र दीक्षा दिया नहीं, उनका कोई एक भी मंत्र शिष्य नहीं, किंतु बहुत सारे लोग ही उनके शिष्य हैं। शिष्य मतलब वास्तविक रूप में उनके हृदय के अनुसार चलने वाले। जिन जिन भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के अनुसार चलना प्रारंभ किया, उनका रहन सहन, खाना पीना, जीवन का दिनचर्या, उनका जीवन का उद्देश्य, सारा कुछ जिनका चैतन्य महाप्रभु के विचार अनुसार बना, उनको कहते हैं ये सारे कौन है? महाप्रभु के शिष्य। तो एक तो उस समय साथ में रहने वाले थे, नरहरि सरकार उन्हीं में से एक। फिर महाप्रभु जब इस जगत से चले गए, तब नरहरि सरकार के पास में कौन आने लगे? अलग अलग भक्त लोग आने लगे। उनमें से एक भक्त का नाम है श्री लोचन दास ठाकुर। इन्होंने नरहरि सरकार का चरण आश्रय किया, उनके शिष्य बने, उनसे दीक्षा इत्यादि ली। लोचन दास ठाकुर उनकी सेवा करने लगे। लोचन दास ठाकुर ने उनसे चैतन्य महाप्रभु की सारी बातें जो हैं एक के बाद एक शिक्षा उनसे ले ली। महाप्रभु का आचरण, महाप्रभु का विचार, महाप्रभु का इस जगत में आने का उद्देश्य इत्यादि सारा कुछ उन्होंने ग्रहण किया। फिर जो नरहरि सरकार के साथ में और भक्त रहते थे, बहुत सारे अलग अलग भक्तों का संग भी लोचन दास ठाकुर जी को प्राप्त हुआ। उनसे भी इन्होंने शिक्षा ली एक साथ में। इस प्रकार से इनका एक बहुत अद्भुत सुंदर जो वैष्णव चरित्र वो इनका घटित हो गया। ये शुद्ध भक्त के जैसे सारी चीजें करने लगे, शुद्ध भक्तों के जैसे सारी कार्य करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु का भी इनको संग प्राप्त हुआ। अब श्री नरहरि सरकार ने इनके गुणों को देखा, इनमें विशेष गुण कौन से हैं। भगवान ने अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग गुण प्रदान किए हैं। इसीलिए गुरु हो, भगवान हो, वो सबके अलग अलग गुणों के अनुसार उनको विभिन्न सेवाओं में नियुक्त करते हैं। तो नरहरि सरकार ने देखा कि मेरे जो ये शिष्य लोचन दास ठाकुर, ये गीत जो है अथवा जो कथाएं हैं, उनको गीत के रूप में बड़े सरल करके लिख देते। सभी लोग, कोई व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें बता सकता है, बोल सकता है, किंतु कविता के रूप में नहीं लिख करके दे सकता। लोचन दास ठाकुर जी में गुण था कि उनको कोई भी बात बोलो, वो उसको कविता के रूप में व्यक्त कर देते थे। उन्होंने अपने गुरु जी की कथा सुनी और थोड़ी देर के बाद में उनको अगर कहो कि आप वही सारी बातें जो हैं हमारे को कविता के रूप में सुना दो, तो वो फिर वही सारी बातें गा करके सुना देते थोड़ी देर में। इसलिए उनके गुरु जी ने कहा कि ये तो बहुत इनमें विशेष गुण है, और जो बात बोलते हैं इतना सरल करके बता देते हैं कि सारे के सारे लोगों को ही, बुद्धिमान से बुद्धिमान और बिल्कुल साधारण बुद्धिमान, कोई ऐसा भी क्यों ना हो, सारे इनकी बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें महाप्रभु
के सुंदर सुंदर उपदेश, जिन बातों को कहने में घंटों लग जाएंगे, ये क्या कर देते हैं, उन्हीं बातों को 2-4 शब्दों में ही बता देते हैं, जिसका सुनने का सच में इच्छा, वो उसी में सारा कुछ समझ जाएगा। ज्यादा बोलते नहीं है। मितम चा सारम चा वचो ही वाग्मिता। मितम चा मीठे शब्दों में, सारम चा में मुख्य बात बतला दी। मीठे शब्दों में जो अच्छा लगे, समझ भी आए। सरल शब्दों में मितम चा सारम चा, सारी बहुत सारी बड़ी बड़ी बात की जो जाती है उसको संक्षेप में केवल बता देना। मितम चा सारम चा वचो ही वाग्मिता। किसी को ही वास्तविक रूप में विद्वान होना कहते हैं, विद्वत्ता कहते हैं। विद्वान व्यक्ति क्या करेगा, मीठे शब्द बोलेगा, कम शब्द बोलेगा, किंतु मैसेज बहुत बड़ा दे देगा। जैसे भगवान ने क्या बोल दिया भगवद गीता में, यह संसार कैसा है, दुखालयम और अशाश्वतम। 2 शब्द बोल दिए केवल। क्या बोल दिया, दुखालयम और शाश्वतम। ये संसार दुखालय है और ये संसार अशाश्वत है। अब जिस भी व्यक्ति को इसको समझने की इच्छा, वो अपना अच्छी तरह से विस्तार करता है। भगवान ने किंतु मुख्य बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही कम शब्दों में उसको बोल दिया। हमारे महाराज जी को किसी ने बोलना कि महाराज जी मैंने इनसे ये वाली बात सुनी, उनसे वो वाली बात सुनी, उन्होंने केवल सरल सा बोल देना कि वो प्रामाणिक वैष्णव हैं, केवल इतना। क्यों बोलते हैं ये वाली बात, क्योंकि अधिकांश लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि कौन प्रामाणिक है कौन नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए वो केवल मुख्य बात बोलते हैं। किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी भूल कर दी तो लोग बोल रहे हैं उसके साथ हम बात करें नहीं करें, संबंध रखें नहीं रखें, उनके साथ क्या करें क्या नहीं करें। महाराज जी ने बहुत सारी बातें सुनने के बाद में सिर्फ पूछा, जो उन्होंने दोष किया उसके लिए उनको पश्चाताप है या नहीं। अगर तो पश्चाताप है तब तो उनके साथ में कुछ बात की जा सकती, उनको सुधारा जा सकता। अगर उनको पश्चाताप नहीं है तब उनके साथ में कोई बात भी नहीं की जा सकती, ना उनको सुधारा जा सकता। उनका रोग जो है असाध्य। कितना सिंपल सी बात है। इसी प्रकार लोचन दास ठाकुर जी की योग्यता थी, बड़ी बड़ी बातों को बहुत कम शब्दों में किंतु बड़े ही गुरुत्वपूर्ण पद्धति से वो बदला देते। लोचन सरकार ने देखा ये मेरा शिष्य जो है लोचन दास ठाकुर, इसमें विशेष गुण है। एक तो सारी बातों को कविता के रूप में बोल देता है। कोई व्यक्ति बच्चे के जैसा भी अगर बहुत कम ध्यान दे, उसके आसपास भी अगर इनकी बात चल रही होगी वो भी सीख जाएगा। जैसे कोई बच्चा, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल ही वो आसपास में जो भी बात सुनते हैं वो अपने आप पकड़ लेते हैं उन बातों को बच्चे। इसी प्रकार से इनकी बातों को भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी पकड़ लेगा और बड़ा सार बता देते हैं बड़ी अच्छी तरह से। इसलिए इनको कहा कि आप क्या करो, आप चैतन्य महाप्रभु की जो कथाएं हैं उसको आप लिख दो। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी कथाओं को जो अपने गुरु जी से भी और प्रामाणिक वैष्णवों से जो सारा सुना था, इन्होंने कृपा करके उसको क्या किया, लिख करके दे दिया। इन्होंने जो जो लिखा वो सारा कुछ गाया जा सकता, उसको मृदंग बजा करके करताल बजा करके गा सकते हैं साथ साथ। जैसे दोहे गाते
श्लोक हैं वो आप हारमोनियम के साथ में गा सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने जो लिखा प्यार, वो सारे प्यार जो हैं आप अच्छी तरह से गा करके भी जा सकते हैं। जैसे कबीर गोस्वामी जी ने लिखा, लोचन दास ठाकुर जी के तो कीर्तन स्मरण है मेरे को, किंतु ग्रंथ वाला कुछ स्मरण नहीं। कबीर गोस्वामी ने ग्रंथ में लिखा जय जय, उन्होंने सरल लिखा जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जाहर कृपाए पाइनु वृंदावन धाम। जय जय नित्यानंद जय कृपामय, जाहर कृपाए पाइनु रूप सनातन आश्रय। ऐसे करके लिखते जाते हैं, आप उसी को गा सकते हैं। कैसे गाएंगे? जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जाहर कृपाए पाइनु वृंदावन धाम। इस प्रकार से गा करके भी कर सकते हैं। तो लोचन दास ठाकुर जी की जो बातें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो सारी बोली है, सारी की सारी गा करके बड़े आसानी से एक व्यक्ति क्या कर सकता है? समझ सकता है। उन्होंने अपने ग्रंथ को जब लिख दिया, उसका नाम रख दिया चैतन्य मंगल। श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, क्यों उन्होंने ये वाला नाम रखा चैतन्य मंगल? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कथाएं जो हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए अत्यधिक मंगलमयी, मंगल प्रदान करने वाली हैं, ऑस्पिशियस। इसीलिए लोचन दास ठाकुर जी ने कहा कि ये जो सारी बातें मैं लिख रहा हूं, इसके द्वारा जिन्होंने मुझे सुनाया था और मैंने जिन्होंने सुना था, आगे जिनके लिए लिख करके रख रहा हूं, सबके लिए ही ये सारी बातें क्या हैं? परम मंगलमय। इसलिए ग्रंथ को नाम दिया चैतन्य मंगल। फिर एक बात, जब इनके ग्रंथ को भक्तों ने देखा, पढ़ा, तो उन्होंने एक बात बार बार बोली कि आपने बहुत कुछ तो लिखा उसमें, किंतु नित्यानंद प्रभु की महिमा को तो आपने बिल्कुल स्पर्श भी नहीं किया। क्या नित्यानंद प्रभु से आपको कोई असुविधा है? उनके विषय में आपने कुछ भी नहीं वर्णन किया। जो महाप्रभु के साथ सब समय रहते हैं, उनके विषय में कुछ भी नहीं लिखा। तब इन्होंने फिर नित्यानंद ये वाली बात सुन करके इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मेरा तो ये वाला उस तरफ मेरा दृष्टिकोण रहा नहीं। मैंने नित्यानंद प्रभु के विषय में सच में तो नहीं लिखा कुछ भी, किंतु मैं अपने साथ साथ में भूल को सुधार दूंगा, साथ साथ सुधारूंगा। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे, बड़ा व्यक्ति अगर हो कोई, उसको अगर उसका कोई छोटा सा कमी कोई बतला दे तो वो बौखलाता नहीं, उसको असुविधा नहीं होती अपनी कमी सुनने में। वो साथ साथ में कहता है, स्वीकार करता है कि हाँ, वो मेरी बहुत बड़ी कमी है, रह गई, मैं अपनी साथ साथ इस चीज को सुधारता हूं। ये उसके बड़ेपन का लक्षण होता है। इसके लिए महाराज जी एक उदाहरण देते थे। एक साइंटिस्ट बहुत बड़ा, जिसका नाम है आइंस्टाइन, उसने एक लॉ लिखा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिलेटिविटी। उन्होंने जो लॉ दिया उसका नाम है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट। अभी कोलकाता में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था, वो सर नेम तो है बॉस, पूरा नाम मैं भूल रहा हूं। मैंने कल ना परसों फोन में देखा उनका सारा कुछ, प्रेमदास प्रभु के साथ 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 व्हाट्सएप करके उनको भेज दिया, संभाल दिया, ग्रंथ में बाद में काम आएगा महाराज जी के एग्जाम्पल में। उसमें जो आइंस्टाइन का जब लॉ आ गया, पूरा संसार उसको स्वीकार कर रहा था, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। तो
कलकत्ता में बैठा हुआ एक बहुत छोटा सा साइंटिस्ट, उस समय जिनको बहुत छोटा कहते थे, अभी नया नया व्यक्ति, उनका नाम बोस हो। पूरा नाम मिलता किसी को? जगदीश चंद्र बोस हो। जगदीश चंद्र बोस हो। हमारे फोन में लिखा हुआ था JC, कोई जगदीश चंद्र से आ गया। जगदीश चंद्र बसु है ना बोस है, पता नहीं, बोस है, बोस, जगदीश चंद्र बोस। उसने बहुत सारे पत्र लिखे आइंस्टाइन के नाम पे कि आपकी भूल हुई है बहुत बड़ी। सारे लोग तो आपके लॉ को स्वीकार कर रहे हैं, किंतु इसमें भूल है, कहने का बड़ी है। किंतु लेटर्स उनके पास किसी ने दिए ही नहीं, उनकी मेल कोई और पढ़ता था। जो इंपॉर्टेंट चीज उनके पास बता देंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास लेटर पहुंचे, सबके लेटर पढ़ते थोड़ा ना है, उनके असिस्टेंट है आगे पढ़ करके आइंस्टाइन के पास इनके वाला मैसेज पहुंचा ही नहीं, इन्होंने बहुत बार लिख लिया। वो जिस देश में रहते थे ये उस देश में पहुंच गए। अभी अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, अपॉइंटमेंट मिलता नहीं। छोटा सा व्यक्ति, और ये बार बार अलग अलग लोगों को बोलते हैं, जितने भी साइंटिस्ट लोग, इनसे बहुत बड़े बड़े, आइंस्टाइन से छोटे, सबको बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि पागल व्यक्ति आ गया कहीं से। आइंस्टाइन की चीज में भी दोष दिखा रहा है, आइंस्टाइन की चीज में भी दोष दिखा रहा है, पागल व्यक्ति है कोई मानने को तैयार नहीं, बात ही सुनता नहीं इनकी। इन्होंने क्या किया है, आइंस्टाइन के घर के बाहर जहां वो रहता था वहीं घंटों वेट किया, और आइंस्टाइन जब अपनी गाड़ी में बैठ कर बाहर निकला तो इन्होंने अपने लेटर जो हाथ में लिया हुआ था, जैसे कैसे करके उनकी खिड़की में से उनके पास फेंक दिया लेटर। वो आइंस्टाइन ने लेटर पढ़ा, 2-4 मिनट के बाद में ही इन्होंने लिख करके उसमें लिख दिया था पीछे नोट पे कि अगर आपकी मिलने की इच्छा हो, मैं इस जगह पर रह रहा हूं आपके देश में, आपकी सिटी में। तो थोड़ी देर के बाद में ही वो वहीं पर ही आ गया जहां पर इनको लेटर उनकी गाड़ी में डाला था। 2-4 मिनट में पढ़ना हो गया, तो वो एकदम से इनके पास आ गया कि मेरी भूल बता दो। इनको अपने साथ लेकर के गया, इन्होंने भूल बताई, उन्होंने भूल को स्वीकार किया, और उन्होंने फिर अपने लॉ ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया, बोस उसके साथ में जोड़ दिया, आइंस्टाइन बोसेल लॉ, ऐसे करके उसका नाम ही बदल गया उस लॉ का। पहले उसने अपने नाम के साथ इनका नाम जोड़ा उसमें। अब ये बहुत छोटे व्यक्ति, वो बहुत बड़ा व्यक्ति, किंतु बहुत बड़ा व्यक्ति जो है उसने अपनी भूल को 1 मिनट में इन्होंने बताया, साथ साथ में समझ भी लिया, सुधार भी लिया, लोगों को बता भी दिया। ना तो स्वीकार करने में कोई परेशानी, ना लोगों से छिपाने में परेशानी कि मेरी भूल हुई थी और इसने मेरी ठीक कर दी, और सब समय के लिए उसको स्वीकार भी कर लिया। इससे वो छोटा हो गया ना, बड़ा हुआ उल्टा। छोटा बन गया आइंस्टाइन, या बड़ा हो गया? बड़ा हो गया उल्टा। इसी प्रकार से लोचन दास ठाकुर जी ने साथ में स्वीकार किया कि हाँ ये बात तो ठीक बोल रहे हैं सारे लोग। मैंने कितने भक्तों की महिमा गाई, भी गाई, किंतु जैसे उनकी महिमा गानी चाहिए थी मैंने उस प्रकार से उनको गुरुत्व दिया है। इसलिए उन्होंने कीर्तन लिखने प्रारंभ किए, नित्यानंद प्रभु के लिए बहुत सारे कीर्तन लिखे। निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, निताई मोर जीवन धन। नित्यानंद प्रभु कौन है? मेरे जीवन के धन स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु जी नरहरि सरकार और जितने सारे वैष्णव उनका इतना महिमा गाते हैं, उनके इतने शिक्षाएं देते हैं, उनकी जीवनी से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, मेरी तो जाति भी वही। निताई मोर आर नाई गति, मैं क्या कोई उनके चरणों में दोष करूंगा? मेरी तो सदगति नहीं होगी फिर कभी भी। मेरी सदगति तो उनका वास्तविक रूप में शरण लेने में, मैं उनकी शरण लूंगा तभी तो मेरी
निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, निताई विहने मोर आर नाही गति। आर नाही गति। आगे, संसार सुखेर मुखे तुले दीबो छाई, नगरे मागिया खाबो गाई या निताई। कह रहे नित्यानंद प्रभु के ऊपर तो मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। उनको संसार सुखेर मुखे, इस संसार के और जितने सारे सुख हैं मैं क्या करूंगा, एक तरफ संसार के सारे सुख और दूसरी तरफ अगर नित्यानंद प्रभु कहा जाए इन दोनों में से आप किसको चुनोगे? जैसे हनुमान जी ने राम सीता को चुना था, मोती को जो हार है वो तोड़ तोड़ के फेंक दिया। अर्जुन ने किसको चुना? कृष्ण को चुना। दुर्योधन ने सेना ली थी बहुत बड़ी। इसी प्रकार से ये क्या कह रहे हैं, एक तरफ पूरा संसार, दूसरी तरफ नित्यानंद प्रभु को अगर रखें तो मैं क्या लूंगा? संसार सुखेर मुखे तुले दीबो छाई। संसार की सारे जो उसका जो फेस है, उसकी जो सारी चीजें हैं, उसके ऊपर तो मैं राख को लेकर के काली पोत दूंगा उसके मुख पर। संसार सुखेर मुखे तुले दीबो छाई, छाई मतलब राख, काली, वो पोत दूंगा। और नगरे मागिया खाबो गाइया निताई, और अगर आवश्यकता पड़े भीख मांग करके खा लूंगा, किंतु निताई निताई बोलता रहूंगा, उनका ही होकर के रहूंगा। भीख मांग करके खा सकता हूं, दुख पा सकता हूं, कुछ भी करूंगा, किंतु रहूंगा उनके चरणों में। आगे, जे देशे निताई नाई से देशे न जागो। जिस देश में नित्यानंद प्रभु का आदर नहीं होता, जिस देश में नित्यानंद प्रभु की सेवा नहीं होती, जिस देश में नित्यानंद प्रभु के अनुसार नहीं चलते लोग, जिस देश में जाने से सब और नित्यानंद 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 की छाप नहीं दिखाई देती, मैं उस देश में कभी जाऊंगा ही नहीं। देश किसको कहते हैं? देश शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है। जे देशे निताई नाई, जिस देश में, मतलब भारत देश, पाकिस्तान देश, ऑस्ट्रेलिया देश, एक ये देश हो गए। और किसको बोलते हैं देश? अपने अंग प्रत्यंगों को भी देश बोलते हैं। कीर्तन में बोलते हैं, गल देशे वनमाला करे झलमल। महाप्रभु के, राधा रानी के गल देश में, गल देशे वनमाला झलमल, उनके गल देश में, मतलब उनके गले में, ये वाले स्थान पर, कौन से शरीर के स्थान पर? गले वाले स्थान पर। तो अपने एक एक अंग को भी देश बोलते हैं। तो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, मेरा अगर कोई भी मेरा अपने शरीर का अंग भी अगर नित्यानंद की शरण नहीं लेगा, उनके अनुसार नहीं चलेगा, उनके अनुसार नहीं सोचेगा, मैं उस अपने अंग प्रत्यंग की भी सेवा नहीं करूंगा, उसकी भी केयर नहीं करूंगा। जैसे श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे, एक दिन उनका सेवक उनके सामने प्रसाद लाया, सुबह 8:30-9 बजे, जैसे प्रतिदिन देते हैं जलपान। तो कहते हैं सेवक को कि आज मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं प्रसाद पाओगे आप? कह रहे मेरी जीवा ने आज हरि नाम पूरा करने में मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए इसने जब मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मैं इसको खाना क्यों दूंगा? मैं भी इसको खाना नहीं दूंगा। आज मेरे मन ने मेरे को सुला दिया, मेरा हरि नाम पूरा नहीं करने दिया। अभी मन अगर करेगा अभी कि भोजन करो, मैं इस मन को भोजन नहीं कराऊंगा। इस वाले भाग ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं भी इसका साथ अभी नहीं दूंगा, इसको भी कुछ ना कुछ दंड दूंगा। जिस स्थान पर नित्यानंद प्रभु की निंदा होती है, जिस स्थान पर नित्यानंद प्रभु के प्रति अश्रद्धा होती है,
मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा। इसलिए हम लोगों को प्रारंभ से ही सिखलाते हैं, जिस जगह पर गुरु का अनादर होगा, गुरु की निंदा होएगी, गुरु के प्रति अश्रद्धा करने वाले लोग, उस स्थान पर उस प्रकार के व्यक्तियों के साथ में कभी रहना नहीं, उनका संग करना नहीं। ये देशे निताई नहीं, उस स्थान को ही छोड़ के चले जाना पड़ता। तो इसलिए बोल रहे हैं जे देशे निताई नहीं से देशे न जाबो, मैं तो उस स्थान पे जाऊंगा ही नहीं। निताई विमुख जनार मुख नाई वो, नित्यानंद प्रभु के जो विमुख होगा, विमुख होना मतलब जो उनसे मुंह फेर के रहेगा, उनके प्रति नाक मुंह सुकुड़ेगा, उस प्रकार के व्यक्ति के पास में मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। जे देशे निताई नहीं से देशे न जाबो, निताई विमुख जनार मुख नाई, उनका मुंह भी देखूंगा नहीं। क्यों देखना मेरे को उनका मुख? मेरा जीवन जो है वो नित्यानंद प्रभु है, और ये उनके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी श्रद्धा नहीं करते उनके प्रति, मैं इनका मुख भी नहीं देखूंगा। निताई विमुख जनार मुख ना हेरी वो, गंगा जार पद जल हरा शिरे हरे। कह रहे नित्यानंद प्रभु जो हैं, इनके चरणों का जल गंगा है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के जो अवतार होते हैं सारे, उसके मूल अवतार हैं बलराम जी, उन्हीं से सारे प्रकटित होते हैं अवतार। तो इसीलिए कह रहे गंगा जार पद जल, गंगा इनके चरणों का जल है, इनके अंश का चरण का जल है। गंगा जार पद जल हरा शिरे धरे, जिनके जल को, चरण के जल को शंकर जी जैसे महान महान व्यक्ति भी अपने मस्तक पर रखते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु की अगर कोई थोड़ी सी भी अवहेलना करे, अनादर करे, उनसे सम्मान ना करे, उनकी बात ना माने, उनके विरुद्ध कुछ कहे, ऐसे वाले व्यक्ति का क्या करूंगा? गंगा जार ताई ना भजिया दुख पे मरे। वो व्यक्ति तो दुख पाके मरेगा बार। और मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में क्यों रहूंगा? क्यों उसका मुख देखूंगा? मैं तो देखूंगा नहीं, मैंने थोड़ा ना उसके दोष में भागीदार बनना। आगे गंगा जार पद ना भजिया दुख पे मरे, लोचन बले मोर निताई जेबा नाही माने, अनल भेजाई तार माज मुख खाने। लोचन बोले मोर निताई जेबा नहीं माने, जो नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं लेता, उनको नहीं मानता। मानने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं भगवान कृष्ण को नहीं मानता, मतलब उनका अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, उनकी शिक्षा नहीं लेना चाहता, उनको कोई श्रेष्ठ, उनको सचमुच भगवान में मानना ही नहीं चाहता, उनमें बहुत शक्तियां हैं, उनकी कृपा मेरे को चाहिए नहीं, मैंने क्या करना इनकी कृपा का, इसको कहते भगवान को नहीं मानता। तो कह रहे हैं कि लोचन बले मोर निताई जेबा नहीं माने, जो व्यक्ति मेरे नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता, मेरे अगर बस चले मेरा, तो मैं क्या करूंगा? अनल भेजाई तार माग मुख खाने, उसके मुख में मैं क्या कर दूंगा? जलती हुई आग के अंगारे, जलती हुई आग की लकड़ियां डाल दूंगा उसके मुख में। क्यों? तेरा तभी मंगल होगा, उल्टा अनादर करने से तेरे और कष्ट हो। ये वैष्णवों की भाषा है। तेरा मुख नहीं देखूंगा और तेरे मुंह में आग डाल दूंगा, तेरे स्थान पर जाएगा कौन? ये अभिमान नहीं है? अभिमान है? गर्व है? नहीं, कहते हैं ये वैष्णवों की भाषा को समझने के लिए पहले एक व्यक्ति को बहुत अपने आप को बड़ा बनना पड़ता है, तब भाषा समझ आती है कि कौन सी अवस्था में, कौन सी दशा में, कौन से भावों में खो करके वो सबकी हितैषी है।
मंगल करने वाले, सारे गुणों से संपन्न, फिर ऐसी वाली भाषा बोलते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए बोलती है भाषा, अगर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर महाप्रभु प्रसाद पाने आए और सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी इत्यादि ने बहुत सारी आनंद से अपना बहुत सारी चीजें उनके लिए बना दी, जगन्नाथ जी का प्रसाद भी बहुत सारा मंगवा दिया, बहुत सारी चीजें बना भी दी। अभी उसके बाद में उनका जमाता अर्थात उनकी पुत्री का पति जमाता, वो एकदम से वो व्यक्ति है कैसे वाला, भक्तों का विद्वेषी, वो भक्तों का विद्वेषी है, भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनको भिखारी समझता है। और उसके ससुर जी जो हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, वो राजा के गुरु हैं ना, राजा पुरोहित, वो राजा के पुरोहित हैं। तो अभी बड़ा पद है बहुत, और सार्वभौम है मतलब बहुत बड़े विद्वान है, तो वो अमोघ जो उनका जमाता वो अपने मन में सोच रहा है, ये विद्वान व्यक्ति मेरे ससुर जी और राजा के पुरोहित, इतना बड़ा इनका पद, इतना सम्मान, और ये क्या कर रहे हैं, ये इस भिखारी के लिए इतना सारी चीजें बना रहे हैं इसको खिलाने के लिए, क्या हो गया इनको, और देखने के लिए आया। उनके ससुर सुनते नहीं उनकी बात, तू तो पागल है, तेरे को देखने की भी जरूरत नहीं, हम क्या कर रहे, तू अपना दूसरी तरफ रह, तेरे को नहीं समझ आएगा, तेरे को कुछ नहीं समझ आएगा, साधु कौन होता है और महाप्रभु कौन है, उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए, तेरे को कुछ नहीं समझ आएगा, अभी तू दूर रह, उसको दूर कर रहे। किंतु तब भी जा कैसे कैसे करके छिप करके देखने के लिए गया और बोलने लगा एकदम से, इतनी सारी चीजें ये भिखारी के लिए, इतनी सारी चीजें इनको खिलाने के लिए, कुछ कुछ ये कैसा व्यक्ति है, ये भी खाने के लिए बैठ गया, इतना सारा खाएगा, कुछ कुछ ऐसे बोल रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने लाठी उठा ली और लाठी उठा करके उसको मारने के लिए गए। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी की पत्नी क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं, ये जो मेरी पुत्री शाठी, उनकी पुत्री का नाम था शाठी, ये शाठी जो है ये विधवा हो जाए वही ज्यादा अच्छा। कोई चाहता है अपनी बेटी विधवा हो जाए? कोई अपने जमाता को लाठी से मारता है? तब भी लाठी से मारने गए, वो कहती है मेरे लिए पुत्री विधवा हो जाए। और महाप्रभु ने तो कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको समझ नहीं है, छोड़ो उसकी बात। महाप्रभु ने जैसे जो प्रसाद पाना पा करके भालू पड़ गया। इस प्रकार की जोर जोर से बातें जब अमोघ बोलते बोलते जा रहा है, तो महाप्रभु भी ठीक से प्रसाद नहीं पा पाए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के मन में दुख हुआ बहुत अधिक, उन्होंने उपवास किया उस दिन, बूंद भी नहीं ली पति पत्नी ने, मन में बड़े दुखी हैं। और ये भी समझ आ रहा है उनको कि प्रभु ने ठीक से प्रसाद नहीं पाया, अमोघ का दोष हुआ है बहुत बड़ा। और वही अमोघ को क्या हुआ, अब महाप्रभु जो है भगवान हैं और उनके प्रति ऐसा बोल दिया, इसलिए अमोघ को रोग आ गया एकदम से, ऐसे वाला रोग आया, अभी मर जाएगा। मैं तो भूल गया, हैजा हो गया, उल्टियां होती हैं, साथ साथ में टट्टी भी निकलती है, और कुछ नहीं खा सकता, इलाज नहीं है, मरने जैसी स्थिति हो गई एकदम से। तो हजारों लोग तो भगवान को गालियां निकालते हैं, मानते ही नहीं है भगवान को, उनको क्यों नहीं हैजा होता, इनको क्यों हैजा हो गया साथ साथ में। भगवान के प्रति कृपामय है, साथ साथ सार्वभौम भट्टाचार्य जी के संबंध से इसका दोष साथ साथ में ठीक कर दो, इसलिए इसको साथ साथ में दंड दे दिया।
महाप्रभु के पास में आकर के बात पहुंची तो महाप्रभु कहते हैं मैं जाऊंगा अमोघ को देखने के लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं प्रभु बिल्कुल नहीं जाओ, मरने दो उसको, वो कल का मरता अभी अभी मर जाए, बहुत अच्छा, उसको मैं देखने भी जाऊंगा नहीं, उसको कुछ खिलाऊंगा भी नहीं, कुछ नहीं करूंगा। किंतु महाप्रभु बोल रहे हैं मैं जाऊंगा, जिद करके महाप्रभु ने कहा मैं जाऊंगा, चले गए। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये क्रोध के कारण ऊपर से जो भी बोल रहे हो उसकी जितनी बड़ी गलती भी क्यों नहीं हो गई हो, किंतु फिर भी उनके ससुर हैं, बेटी के साथ संबंध है, अंदर से इनका दुख होगा बहुत अधिक। अभी भी दुखी है कि वो उसने बहुत बड़ा अपराध किया, वो मर जाएगा, पुत्री विधवा होगी, कभी बहुत दुखी होंगे सार्वभौम। इसलिए मेरा भक्त कभी थोड़ा सा भी दुखी हो ऐसा मैंने नहीं करना, इसलिए कष्ट भी दे दिया, साथ साथ उनके पास पहुंच भी गए और उनके हृदय पर हाथ रख करके बोला महाप्रभु ने, अमोघ तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जन्म लेकर के भी हृदय में अपवित्रता, अज्ञानता, इस सारी चीज को, ईर्ष्या, इस सारी चीज को अपने हृदय में क्यों स्थान दे के रखा है? अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछ क्यों नहीं लेते, मेरे से क्यों नहीं पूछ लेते किसी चीज को? अपने हृदय में अपनी आप धारणा बना करके इस प्रकार का काम कर रहे हो, क्यों ऐसा करते हो? ऐसा नहीं करना। और महाप्रभु ने उनके वक्षस्थल पर, उनके सिर पर अपना हाथ फेर दिया और वो सचमुच में पवित्र हुआ, रोग भी चला गया, विलाप भी करने लगा, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे से भूल होती है, मैंने क्यों देखा इस तरह से, मेरा क्या लेना देना, अगर मुझे सेवा नहीं करनी तो भी मेरे को हर चीज में अपना टांग क्यों अड़ाना? इस प्रकार से विलाप करते करते महाप्रभु ने इच्छा की उनका हृदय पवित्र हो जाए, दोष चले जाए, उनके दोष चले। तो इस प्रकार से जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य का, उनकी पत्नी का अपने जमाता के प्रति क्रोध दिखाई भी दे रहा है, सब कुछ होने पर भी अंदर में किंतु क्या है, साथ ही साथ भावना अच्छी वाली भी है संबंध के कारण। इसी प्रकार से वैष्णव के लिए, लोचनदास ठाकुर जैसे वैष्णव के लिए सारे संसार के लोग कैसे हैं? भगवान के ये संतान हैं, मेरे भाई बंधु हैं। इनको सारी अच्छी अच्छी बातें बताने पर, सिखाने पर भी ये उस तरह से समझते नहीं है नित्यानंद प्रभु का वैल्यू क्या है, उनका कैसा आदर करना चाहिए। मेरे को इसलिए इनके ऊपर बड़ा क्रोध आता है, इनके मुख में आग डाल दो क्या, इनका मुंह भी नहीं देखूं, ये कोई बात है? ये मेरे अपने लोग, दुखी होकर के भी इस प्रकार की भाषा निकलती है, अपने ही लोग समझाने पर भी समझते ही नहीं, क्या करूं इनके लिए, उस प्रकार की भाषा। नहीं तो वैष्णव कैसे होते हैं? सूरिदास सर्वदेही नाम, ये उनका गुण है। वो तो एक चींटी के भी बंधु होते हैं, पशु हिंसा करने के लिए मना करते हैं, मनुष्य की हिंसा करने के लिए मना करते हैं, और फिर स्वयं किसी के मुख में आग लगाएंगे, ये कैसी बात हुई? तो कह रहे हैं इसलिए उसको समझने के लिए अलग प्रकार का ब्रेन सब्सटेंस चाहिए होता है, तभी व्यक्ति समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता। श्री लोचनदास ठाकुर जी की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। जितेंद्र प्रभु, आपको मेरे कमरे से प्रसाद लाना।